Hello students, this is Shivam Misra and now we are going to discuss some more questions of arithmetic progression. Suppose we have a question such as how many numbers of terms there in the GP. How many numbers of terms there in the GP 5, 20, 80, comma dot 5 1 2 5 1 2 0. How many numbers of terms are there in the GP 5, 20, 20, 80, comma dot 5 1 2 0. You have to find the number of terms in the GP. So what we will do, we know that first to find whether this is GP or not. So we know that for a GP, we used to do R equals to B by A. First of all, we have a work whether to find this is a GP or not. To confirm that, we then put find R and R equals to B by A, or you can say A n upon A n minus 1. Now this can be simplified as B by A means 20 by 5, and this will be 4. And similarly, you can write a n upon a n minus 1. You can write 80 upon 20. This is also, you can say 4. So it means that the two consecutive numbers of this series has a common ratio of 4. Has a common ratio of 4. This implies that the above series is a GP. So for this, we have the formula of Pn terms, such as a r power n minus 1. We have the formula of Pn term, Pn equals to a r power n minus 1. And now this is a GP, then this formula must be valid for this. And we have to find the number of terms of this GP. So for number of terms, we will put Pn as a 5, 1, 2, 0, and value of A will be 5, and value of R equals to, you have taken R as a 4, and the value of n is unknown to us, that we need to find out. You have the value of Pn as 5120, value of A as the first term 5, value of R as the common ratio you have taken 4, and value of n is unknown to you, and that you have to take it out. Now what you will do? You will do 5120 equals to A means 5. R means 4, power n minus 1. On simplifying this thing, what you will do, you will just divide 5120 by this 5120 by 5 equals to 4 power n minus 1. Now on division you will find 5 1 is 5, and then 5 2 is 10, then 5 4 is 20. 1024 equals to 4 power n minus 1. Now the factorization of 1024 you have to take up. On dividing you get 1024 equal to 4 power n minus 1. Now what you have to do, you have to find the prime factorization of 1024 in the format of 4, such as we can compare both the sides to find the value of n. On solving 1024 by prime factorization 1024, what you will find 2 512, and then 2 by 6, and then 128, and then 64, and then 32, and then 16, and then 8, again 4, again 2, again 1. Now what you will see, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64, 64 to the 128, 128 to the 256, 256 to the 512, 512 to the 1024. Now these are the terms. So what will we see? 2 into, how many times we got? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 into 2 into 2 into 2 into 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now these are the terms. So we need to find in the format of 4, in the form of 4, what we will do? This is as 4, this one is 4, this one is 4, this one is 4, and this one is 4. You will find 4 into from here, 4 into from here, 4. Wait a minute, I will let you see that. Now you can see. From here you got 4, from 4, and from here one more 4, then 4, and then one more. How many 4 you will get? 5 4s. 1, 2, 3, 4, 5. Now what you will see? 4 power 5 equals to 1024, and this implies on solving 1024 we got 4 power 5 equals to 4 power n minus 1. 4 power 5 and 4 power n minus 1. On comparing to both the sides, what you will find? You will find 4 power 5 equals to 4 power n minus 1. On comparing, you will get 5 equals to n minus 1. Here 1 will transpose to this side, n equals to 6. N equals to 6. Once now on comparing you get n minus 1 equals to 5. This means n equal to 6. एक बार फिर देखते हैं इस सवाल को, ठीक, थोड़ा सा ऊपर से देखते हैं। क्या था कि 5, 20, 80 डॉट 5120 था आपका, ठीक। आपसे पूछा गया था कि n टर्म बताइए, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें, कितनी संख्याएं हैं इसमें, ये आप बताइए। तो क्या करेंगे हम लोग? पहले चेक करेंगे कि जीपी है कि नहीं है। तो r इक्वल टू क्या होता है? b बाई ए मीन्स an अपॉन an माइनस 1। तो चेक किया आपने, दो नंबर बीच में 20 और 5 बीच में पहले, तो 20 अपॉन 5 इक्वल टू 4 और 80 अपॉन 20 इक्वल टू 4, ठीक। ये दोनों से मिल गया 4। इसका मतलब दोनों से सेम रेशियो मिला, मतलब क्या है कि हाँ ये जीपी है, ये कंफर्म हो गया। अब क्या करें? Tn इक्वल टू फॉर्मूला होता है a r और n माइनस 1, जो कि आपको बताया गया है, ठीक। ये Tn का फॉर्मूला है। तो Tn टर्म कितना लेंगे? लास्ट टर्म को Tn टर्म ले लेंगे, क्योंकि मुझे निकालना है कितने सारे टर्म्स हैं इसमें, तो लास्ट टर्म को Tn टर्म ले लेंगे। 5120 को Tn टर्म ले लिया। पहले नंबर को जो होता है उसको a बोलते हैं, a इक्वल टू 5 हो गया, ठीक। Tn टर्म मालूम हो गया, a मालूम हो गया, r वेरिएबल है, r इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेशियो आपने निकाला है 4 मालूम है। n हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ टर्म्स ही बताने हैं, तो n अननोन है, n इक्वल्स टू क्या किया? Tn टर्म वाले फॉर्मूले में सबको पुट कर देगा। तो 5120 इक्वल्स टू 5 इंटू a वाली वैल्यू, r की वैल्यू 4 पावर n माइनस 1 पावर n माइनस 1। ये 5 इस साइड आके डिवाइड करेगा, डिवाइड किया आपने, ये मिल गया 1024 इक्वल्स टू 4 पावर n माइनस 1। अब क्या करना चाहिए? हमें ये सोचना चाहिए 1024 कैसा प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें, ऐसा फैक्टराइजेशन लिखें कि 4 के टर्म में आ जाएगी, ठीक। 4 के टर्म में आए तो 1024 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, तो क्या मिला आपको? ये सारी संख्याएं मिल गई, ठीक। इसमें क्या मिला मुझे कि 2 पावर 10 मिल रहा है। तो 2 पावर 10 को जो है 4 के टर्म में कन्वर्ट किए तो 1 4 2 4 3 4 5 टाइम्स 4 मिल गया, मीन्स 4 पावर 5। अब 4 पावर 5 है तो 4 पावर 5 है तो हमने क्या किया कि 4 पावर 5 इक्वल टू 4 पावर n माइनस 1 में था, उसको रख दिया, ठीक। कंपेयर करने के लिए दोनों को एक साथ किया, तो क्या किया? कंपैरिजन, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, पावर कंपेयर हो जाएगी। पावर कंपेयर होगी तो 5 इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा, 5 इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा, n इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक। जीपी केटी अच्छा चैप्टर है, सबको आना चाहिए चैप्टर। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। दिया है क्या? इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इन ए जीपी कंसिस्टिंग ऑफ
of positive terms, एक जीपी है जो कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है. ईच टर्म इक्वल्स टू जो है इक्वल्स टू सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स. ईच टर्म is equals to sum of next two terms. Each term is equal to sum of next two terms. Then the common ratio of this progression is equal to. तो आपसे common ratio पूछा गया है. Then the common ratio equals to what? क्या दिया है कि इन्हें दिया है आपको कि इन्हें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, कंसिस्टिंग ऑफ सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं. ईच टर्म इक्वल्स टू, आपको दिखेगा इन्हें जीपी, एक जीपी है consisting of positive terms. Each term is equal to sum of next two terms. हर एक टर्म क्या है नेक्स्ट टू टर्म्स के इक्वल है. देन द कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो आपको निकालना है. तो क्वेश्चन था कि इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ईच टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स, देन द कॉमन रेशियो ऑफ द प्रोग्रेशन इज इक्वल टू. क्या बोला कि एक कोई जीपी, सपोज कीजिए कोई जीपी हो, ए है, ए आर है और ए आर स्क्वायर है. ठीक, तीन कंसेक्यूटिव टर्म लिया मैंने. तो क्या बोला उसने कि कोई जीपी या कोई टर्म है जो इक्वल है, किसके इक्वल है? नेक्स्ट टू टर्म्स के सम के इक्वल है. नेक्स्ट टू टर्म्स के सम के इक्वल है. कोई जीपी है जो कि इक्वल है, किसके इक्वल है? तो नेक्स्ट टू टर्म्स के सम के इक्वल है. तो हमने क्या किया, सिंपल लॉजिक लगाया और जनरल टर्म लिखे. जनरल टर्म क्या होता है? Tn इक्वल्स टू ए आर पावर एन माइनस वन. ठीक, जनरल टर्म क्या होता है? ए आर पावर एन माइनस वन. तो मान लेते हैं कि पहला टर्म जो हो वो हो जाए ए आर पावर एन माइनस वन. ठीक, तो अगर ये ए आर पावर एन माइनस वन है तो अगला टर्म क्या होगा? अगला टर्म हो जाएगा ए आर पावर एन. ठीक, ए था तो ये ए है, तो अगला टर्म क्या होगा? ए आर हो जाएगा, आर से मल्टीप्लाई किया, आर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ए आर पावर एन. फिर इसके अगला टर्म लिखना चाहें तो क्या मिलेगा? ए आर पावर एन प्लस वन. ये अगला टर्म हो जाएगा ए आर पावर एन प्लस वन. तो हमसे क्या बोला गया कि ये टर्म जो है इन दोनों के सम के इक्वल. तो हम लोग उसी लॉजिक पर हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ए आर पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू ए आर पावर एन प्लस ए आर पावर एन प्लस वन. हमसे क्या बोला गया? फाइंड द कॉमन रेशियो. ऐसा दिया है तो कॉमन रेशियो आपको आर की वैल्यू निकालनी है. तो कॉमन रेशियो निकालना है. हमें दिख रहा है यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है. कॉमन लेके कैंसिल आउट करें इसको. तो ए आर पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू ए कॉमन लिया तो बना यहाँ पे आर पावर एन प्लस आर पावर एन प्लस वन. यहाँ से ए और ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ये हो जाएगा आर पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू आर पावर एन प्लस आर पावर एन प्लस वन. अब यहाँ से सिंपली हम देखें तो अगर थोड़ा सा इसको ब्रेक कर दें पावर को तो क्या मिलेगा? रेशियो में हमें मिल जाएगा आर पावर एन अपॉन आर. आर पावर एन माइनस वन था, आर डॉट माइनस वन आएगा, पावर माइनस वन पावर नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा? आर पावर एन ऐसे हो जाएगा. यहाँ भी हो जाएगा आर पावर एन और डॉट में आर कहिए प्लस वन है तो डॉट में आर आ जाएगा. ठीक, अब यहाँ से भी आर पावर एन है, यहाँ भी आर पावर एन है, यहाँ भी आर पावर एन. सब इधर कॉमन निकाल लें, इधर बाहर पड़ा है पहले से. तो आर पावर एन इक्वल्स टू आर पावर एन कॉमन निकाला क्या मिला? वन प्लस आर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आर पावर एन अपॉन जो आर था इसको इस साइड भेज देते इंटू में आर हो जाएगा. ठीक, अब ये आर पावर एन और आर पावर एन फिर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या मिलेगा? यहाँ से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट मिल जाएगा
वेट ए मिनट, हमें क्या मिला, r पावर n अपॉन r था, ठीक, इस r को ट्रांसपोज किया तो यहां आ गया, ठीक, और ये वाला यहां नहीं आया, अगली टर्म में आया है, r पावर n अपॉन r यहां लिख दिए, और r पावर n और प्लस r पावर n प्लस 1 था, r पावर n डॉट r आ गया, ठीक। अब क्या किया हमने कि इस r को ट्रांसपोज किया तो इस साइड आया, और यहाँ से r पावर n कॉमन निकाल लिया, r पावर n कॉमन निकाले तो 1 प्लस r हो जाएगा, ये r। अब इसको इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 इक्वल्स टू 1 प्लस r इंटू r, ठीक। अब यहाँ से मुझे r की वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू आप ऐसे ट्रांसपोज करें, इस r को इधर ट्रांसपोज करें तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा 1 बाई r इक्वल्स टू 1 प्लस r, ठीक। अब यहाँ से r की वैल्यू निकालें, दोनों साइड को रेसिप्रोकल कर दें, r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस r। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कॉमन रेशियो। So if r equals to 1 upon 1 plus r, the series will follow that the sum of its term will be equals to next two terms of the series. That series will follow sum of its, that the tn term of the series will be equals to sum of its next two terms. देख लीजिए क्या दिया था, एक कोई जीपी थी जो पॉजिटिव नंबर था, ठीक, हर एक टर्म क्या था, अगले दो नंबरों के सम के बराबर दिया था। एक कोई जीपी थी जिस जो पॉजिटिव टर्म्स की थी, और हर एक टर्म जो है अगले दो नंबर के सम के बराबर था, ठीक। तो कॉमन रेशियो निकालना था, तो टी एन इक्वल्स टू ए आर पावर एन माइनस का फॉर्मूला लगाया मैंने, टी एन टर्म लिखा, अगला नंबर क्या होगा, ए आर पावर एन हो जाएगा, उसके अगला ए आर पावर एन प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। तो टी एन टर्म लिख दिए, ये टर्म लिखे, इसका सम किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही लाइन बोली गई थी, इसके इक्वल इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किए, ए आर पावर एन कॉमन निकालते गए 1 बाई 1 कॉमन निकाल के रेशियो लाए, और यहाँ से फिर आर का मान निकाले रेसिप्रोकल करके, तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट था जो हमें चाहिए था। टिल दैट वी विल सी सम मोर क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट डे, टिल दैट थैंक यू।